हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कितने तरह के सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है देख लीजिए। पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम, दूसरा फेडरल सिस्टम, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशन, इमरजेंसी प्रोविजंस। अब सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है देख लीजिए। The Constitution of India provides for a parliamentary form of government both at center and state। ठीक है, सेंटर और स्टेट में दोनों में पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ठीक है, आर्टिकल 74 एंड 75 डील्स विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम एट सेंटर एंड आर्टिकल 163 to 164 इन द स्टेट। ठीक, if I talk about the modern democratic governments are classified into parliamentary and presidential on the basis of nature of relation between the executive and the legislative organs of the government. And if you will not and you didn't watch my previous videos regarding what is the legislative organs and the executive organs of the government, then go watch my previous videos related to these topics, and then you can easily understand what's going in this chapter. Okay, so let's start again. Modern democratic government are classified into parliamentary and presidential on the basis of nature of relations between executive and the legislative organs of the government. ठीक है, the parliamentary system of government is the one in which executive is responsible to the legislature for its policies and acts. This presidential system of government, on other hand, is one in which the executive is not responsible for the legislature in presidential system for its policies and acts and is constitutionally independent of the legislature in respect of its term of office. ठीक है, the parliamentary government is also known as cabinet government or responsible government or Westminster model of government, and it's prevalent in Britain, Japan, Canada, India, among others. The presidential government, on the other hand, is also known as non-responsible, non-parliamentary or fixed executive system of government, and is prevalent in USA, Brazil, Russia, Sri Lanka, among others. Yeah. The parliamentary government is also known as responsible government, as the cabinet is accountable to the parliament and stays in office so long as it enjoys the latter's confidence. It describes as Westminster model of government after the location of British Parliament, where the parliamentary system originated. ठीक है, let's talk about the features of the parliamentary system of government. Every government and everything has its own features. So let's talk about the features, or we can say the properties. Okay, both are same. Nominal and real executive features. पहला feature क्या है? Nominal and real executive. The president is the nominal executive, de jure executive और titular executive. Titular in the sense केवल उसको टाइटल मिलता है गवर्नमेंट का, बस कि वो एक गवर्नमेंट का हेड है, बस टाइटल हेड है वो। ठीक है, वर्किंग हेड, while the prime minister is the real executive or de facto executive, or executive in the sense you can now understand from here the president is the nominal executive, मतलब प्रेसिडेंट भी एक एग्जीक्यूटिव है और प्राइम मिनिस्टर भी एक एग्जीक्यूटिव है, बट डिफरेंस इज दैट प्रेसिडेंट इज टाइटलर एग्जीक्यूटिव है और प्रेसिडेंट है रियल एग्जीक्यूटिव de facto. Thus the president is the head of the state, while the prime minister is the head of the government. Article 74 provides for a council of ministers headed by the prime minister to aid and advise the president in the exercise of his functions. The advice to tender is binding on the president. Article 74 provides for a council of ministers headed by prime minister to aid and advise the president. आर्टिकल 74 के अनुसार जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है सेंटर की, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, वो एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को। ठीक है, और उसकी एडवाइस बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पे। सेकंड फीचर हमारा मेजोरिटी पार्टी रूल। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? मेजोरिटी पार्टी रूल करती है कि जिसकी पार्टी मेजोरिटी में होगी वही रूल करेगी, वही गवर्नमेंट
चलाएगी। द पॉलिटिकल पार्टी विच सिक्योर्स मेजोरिटी सीट्स इन द लोक सभा फॉर्म द गवर्नमेंट एंड द लीडर ऑफ दैट पार्टी इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। हाउएवर व्हेन नो सिंगल पार्टी गेट्स द मेजोरिटी, कोalition ऑफ पार्टी मतलब संगठन कह सकते हैं, तो गठबंधन की सरकार फिर बनती है। जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं होती तब गठबंधन की सरकार बनती है। मे बी इन्वाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट, और प्रेसिडेंट के द्वारा इन्वाइट किया जाता है और वो लोग गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। ठीक है। 3 कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। पार्लियामेंट्री सिस्टम में सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबकी सहभागिता होती है। दिस इज़ द बेड रॉक प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, और ये मेन प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री फॉर्म का, जो कि सब गवर्नमेंटों से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को अलग करता है। क्या कि यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे मिनिस्टर की। ठीक है। द मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, वो सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए कलेक्टिवली इन जनरल एंड टू द लोक सभा इन पर्टिकुलर। आर्टिकल 75 भी हमारा यही कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डायरेक्टली कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ठीक है। दे एक्ट एज अ टीम एंड स्विम एंड सिंक टुगेदर। स्विम मीन्स डूबना, सिंक मीन्स तैरना, वह साथ ही तैरते डूबते हैं, मतलब एक साथ ही सब काम उनका होता है। ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लाइज दैट द लोक सभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री, हटा सकती है, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। लोकसभा नो कॉन्फिडेंस का मोशन पास करके पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को भी हटा सकती है। ठीक है। चौथा है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। यूजुअली मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी, hence they share the same political ideology. In case of coalition government, the minister are bound by consensus. ठीक है। पहले तो अगर सेम पार्टी के मेंबर मिनिस्टर होंगे तो वो साथ में काम करेंगे आराम से, और अगर कोalition की गवर्नमेंट है तो उसमें सेम पार्टी के नहीं होंगे, उसमें अलग अलग पार्टी के मिनिस्टर होंगे, तब भी उनको मिलके ही काम करना होगा बाय द कंसेंसस। ठीक है। अदरवाइज वो क्या करेंगे, कोलैप्स कर जाएंगे और उनको हटा दिया जाएगा, पूरी भंग कर दी जाएगी लोकसभा ही। ठीक है। डबल मेंबरशिप। द मिनिस्टर आर मेंबर ऑफ बोथ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। दिस मीन्स दैट पर्सन कैन नॉट बी अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। जब तक कि कोई मिनिस्टर पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, कोई पर्सन अगर पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है तो वह मिनिस्टर नहीं बन सकता। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट दैट अ मिनिस्टर हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स कम सीजेस टू बी अ मिनिस्टर। अगर कोई मिनिस्टर है, बन गया है मिनिस्टर, कोई पर्सन मिनिस्टर बन गया है लेकिन वह पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है और वह मिनिस्टर बन गया है, तो 6 महीने के अंदर अंदर उसे अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी होगी पार्लियामेंट में, तभी वह परमानेंट मिनिस्टर रह सकता है। अदरवाइज वह 6 महीने के बाद एज ए मिनिस्टर हटा दिया जाएगा। ठीक है। छठवां पॉइंट क्या है, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप चलती है, गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर चलाता है, प्रेसिडेंट केवल टाइटलर हेड होता है। ठीक है। उसके केवल साइन होते हैं, नेशनल लेवल का कोई भी अगर मैटर होगा उसके केवल साइन होते हैं बस, बाकी एडवाइस उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देती है जिसका हेड होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर प्लेज द लीडरशिप रोल इन दिस सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। ही इज़ द लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ पार्लियामेंट एंड द लीडर ऑफ पार्टी इन पावर। In these capacities, he plays a significant and highly crucial role in functioning of the government. सातवां क्या है हमारा, सातवां फीचर हमारा है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, लोकसभा का भंग होना। द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो कि लोकसभा है, और अपर हाउस हमारा है राज्यसभा, कैन बी, जिसको हम हाउस ऑफ द कॉमन्स कहते हैं, इसको हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं लोकसभा को। क्योंकि हाउस ऑफ द पीपल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पीपल के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट किए गए बाय द जनरल इलेक्शन जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो होते हैं सारे, जो पीपल के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं। और राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में भी डायरेक्ट इलेक्ट किए हुए होते हैं, लेकिन उसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं। ठीक है। ये ज़्यादातर उसमें नॉमिनेटेड होते हैं और वो मेंबर लोकसभा के भी होते हैं और राज्यसभा में। ठीक है। कैन बी, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब लोकसभा को डिसॉल्व भी किया जा सकता है with the advice of the prime minister by the president. In other words, the prime minister can advise the president to dissolve the Lok Sabha
before the expiry of its term and hold fresh elections. This means that the executive enjoys the right to get the legislature dissolved इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या है, इंजॉय द राइट टू गेट द लेजिस्लेचर डिजॉल्व। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव ये इंजॉय करता है, मतलब एग्जीक्यूटिव को ये अधिकार है इसमें कि वह लेजिस्लेचर को डिवो सकता है, लेजिस्लेचर को भंग कर सकता है, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और फिर 8वां पॉइंट क्या है, सेक्रेसी। द मिनिस्टर ऑपरेट्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेसी ऑफ प्रोसीजर एंड कैन नॉट divulge information about their proceedings, policies and decisions. They take the oath of secrecy. मतलब वह अपनी प्रोसीडिंग्स को, अपनी पॉलिसीज़ को छुपा के रखेंगे, वह सब में बताएंगे नहीं। ठीक है, दे टेक द ओथ ऑफ सेक्रेसी बिफोर एंटरिंग देयर ऑफिस। द ओथ ऑफ सेक्रेसी टू द मिनिस्टर इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। अब कुछ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के भी फीचर देख लीजिए, ताकि बाई चांस कुछ कंपेरिजन में क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उसको आसानी से हैंडल कर सके। ठीक है, अनलाइक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द फीचर्स ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर एज फॉलो। द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जबकि प्राइम पार्लियामेंट सिस्टम क्या होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट दूसरा होता है और हेड ऑफ द स्टेट दूसरा होता है। एज द हेड ऑफ द स्टेट ही ऑक्यूपाइज ए सेरेमोनियल पोजीशन, एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ही लीड्स द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट क्या है, द प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर अ फिक्स टेन्योर ऑफ 4 ईयर्स। अपने यहाँ 5 ईयर्स का होता है, जबकि प्रेसिडेंट का अपने यहाँ 5 ईयर्स का होता है। और हमारा गवर्नमेंट का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। ही कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द कांग्रेस। कांग्रेस मतलब कि गवर्नमेंट, उनकी पार्लियामेंट गवर्नमेंट को कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं उनकी लोअर हाउस को। ठीक है, एक्सेप्ट बाय इम्पीचमेंट ऑफ अ ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। द प्रेसिडेंट governs with the help of cabinet or a smaller body called kitchen cabinet. It is only an advisory body and consists of non-elected departmental secretaries. They are selected and appointed by him, are responsible only to him, can be removed by him. D point है, the president and his secretaries are not responsible to the Congress for their acts. अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर को उनकी एक्ट और पॉलिसीज के लिए, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं लोकसभा या पार्लियामेंट कुछ भी। ठीक है, दे नाइदर पॉजेज मेंबरशिप इन द कांग्रेस नॉर अटेंड इट्स सेशन, जबकि पार्लियामेंट सिस्टम में ऐसा नहीं है, उनको सारे सेशन अटेंड करने होते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जबकि पार्लियामेंट्री में एग्जीक्यूटिव ये पावर इंजॉय करता है, वो लेजिस्लेचर को भंग कर सकता है, लेजिस्लेचर को डुबो सकता है, एडवाइस देगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को भंग करने के लिए। वही द लोअर हाउस ऑफ द कांग्रेस। द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज द बेसिस ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सेपरेशन ऑफ पावर्स मीन्स जो पावर्स होती हैं जिनके हाथों में, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल होते हैं, उनके हाथों में पावर्स होती हैं, उनकी पावर को सेपरेट करना दे, जैसे पावर ऑफ द गवर्नमेंट। सेपरेट कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ द सब्जेक्ट, जैसे कि स्टेट के दूसरे सब्जेक्ट होते हैं और यूनियन के दूसरे सब्जेक्ट है, उसके भी पे उनकी गवर्नमेंट को सेपरेशन ऑफ पावर अलग करते। ठीक है, सेपरेट एंड वेस्टेड ऑन द इंडिपेंडेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, और उनको एक इंडिपेंडेंट पावर बना दिया जाता है। ठीक है, इसके आगे की कल बात करेंगे हम मेरिट के बारे में, कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।